नमस्कार, मैं नियाज खान और आप देख रहे हैं न्यूज एक्सप्रेस। तीसरे कार्यकाल में मुसीबतों की बरसात मोदी के सिर से खत्म होने का नाम नहीं ले रही है। ऐसे में अब हिंडनबर्ग के खुलासे से मोदी की बची कुची इज्जत खत्म हो चुकी है और रिपोर्ट चीख चीख करके कह रही है कि मोदी अडानी में कोई ना कोई रिश्ता तो है। ऊपर से राहुल गांधी बवाल काट रहे हैं। देखिए ये रिपोर्ट। कुछ दिनों पहले हिंडनबर्ग ने एक ट्वीट किया और लिखा कि समथिंग बिग सून इंडिया। फिर क्या था, मोदी सरकार के पसीने छूट गए और आनन फानन में चल रहे सदन को स्थगित करा दिया कि कहीं हिंडन के खुलासे से सदन में सरकार की किरकिरी ना हो जाए और सदन स्थगित हो गई। और आखिरकार हिंडनबर्ग ने अपना खुलासा करते हुए बता दिया कि सेबी प्रमुख माधवी और अडानी के भाई विनोद अडानी के बीच रिश्तों का खुलासा कर दिया। फिर क्या था, भारतीय राजनीति में भूचाल आ गया और बीजेपी और नरेंद्र मोदी को सांप सूंघ गया। सोशल मीडिया हिंडनबर्ग से रंग गया और बीजेपी भाग खड़ी हुई। पहले आप इस रिपोर्ट पर राहुल गांधी का बयान सुनिए जिससे बीजेपी की बोलती बंद है और अब बदला लेने के लिए नरेंद्र मोदी ईडी को राहुल गांधी को घेरने के लिए भेज रहे हैं। यह खबर अभी सूत्रों के हवाले से आई है। पहले आप बाइट सुनिए कि राहुल गांधी ने हिंडनबर्ग पर क्या कुछ कहा। Namaskar. Imagine you're watching a cricket match, international cricket match between India and Australia. And every single person who's watching the match and those playing the match know that the umpire is compromised. What would happen to the match? What would happen to the fairness of the match? What would happen to the outcomes? How would you feel as somebody who's participating in the match? This is exactly what is happening in the Indian stock market. Over the last few years, larger and larger numbers of people have been investing in India's stock market. They invest their hard-earned, honestly earned savings in the stock market. And it is my duty as leader of the opposition to bring to your notice that there is a significant risk in the Indian stock market because the institution that governs the stock market is compromised. Now I'm going to explain to you exactly how and why it is compromised. A very serious allegation against the Adani Group was illegal share ownership and price manipulation using offshore funds. It has now emerged that SEBI chairwoman Madhavi Buch and her husband had an interest in one of those funds. This is an explosive allegation because it alleges that the umpire herself is compromised. The savings of millions of Indians, hard-earned, honestly earned savings, are at risk. It is therefore imperative that this matter is investigated. Retail investors, honest investors, pensioners have three questions. The first, why has Chairperson Madhavi Buch not resigned? Second, God forbid something were to go wrong and investors were to lose their money. Who is responsible? Is the Prime Minister of India responsible? Is Madhavi Buch responsible? Or is Mr. Adani responsible? And finally, the Supreme Court has been looking at this matter. New allegations have emerged. Very serious, explosive allegations have emerged. Is the Supreme Court going to look at this matter suo motu again? Slowly becoming crystal clear why Prime Minister Modi is against a joint parliamentary committee looking into this matter. Thank you. तो सुन लिया आपने क्या कह रहे हैं राहुल गांधी अडानी, सेबी प्रमुख और नरेंद्र मोदी सरकार पर। अब हम बताते हैं कि राहुल गांधी ने अंग्रेजी में क्या कहा। जी हां, हिंडनबर्ग के खुलासे पर राहुल गांधी ने कहा कि शेयर बाजारों में काफी जोखिम है। सेबी की अध्यक्ष के खिलाफ लगे आरोपों से संस्था की शुचिता के साथ गंभीर समझौता हुआ है। हिंडनबर्ग की नई रिपोर्ट में दावा किया गया कि सेबी की चेयरपर्सन माधवी पुरी बुच और उनके पति धवल बुच की अडानी के साथ सांठगांठ है और मनी साइफन घोटाले में शामिल ऑफशोर संस्थाओं में हिस्सेदारी है। कांग्रेस नेता ने कहा कि देश भर के ईमानदार निवेशकों के मन में सरकार के लिए कई सवाल हैं। सेबी के अध्यक्ष माधवी पुरी बुच ने अभी तक इस्तीफा क्यों नहीं दिया? अगर निवेशकों की गाढ़ी कमाई डूब जाती है तो इसके लिए कौन जिम्मेदार होगा? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, सेबी अध्यक्ष या गौतम अडानी? इससे आप समझ सकते हैं कि कैसे नरेंद्र मोदी बुरी तरह फंस चुके हैं और अब कुछ बोल नहीं पा रहे हैं। देखना होगा कि आगे राहुल गांधी और विपक्ष क्या करता है।
अब जानकारी आ रही है कि हिंडनबर्ग से डरे मोदी राहुल गांधी को गिरफ्तार करवा सकते हैं। तो अडानी ने इतने बड़े खुलासे पर अपनी बात रखी है और कहा है कि सेबी प्रमुख और अडानी समूह पर लगे आरोप झूठे हैं और दुर्भाग्यपूर्ण हैं। सेबी चेयरपर्सन माधवीपुरी बुच्च ने यह भी बताया कि हिंडनबर्ग की ओर से यह ताजा बयान सेबी द्वारा प्रवर्तन कार्रवाई करने और जुलाई में उन्हें कारण बताओ नोटिस जारी करने के बाद आया है। तो सीपीएम महासचिव सीताराम येचुरी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर कहा कि हिंडनबर्ग मामलों में नए खुलासे में नियामक सेबी पर आरोप लगाया गया है। यह भी कहा गया है कि इसके अध्यक्ष भी हेरफेर में शामिल थीं। उन्हें तुरंत इस्तीफा दे देना चाहिए और जांच के लिए जेपीसी गठित की जानी चाहिए। राष्ट्रीय जनता दल के नेता मनोज झा ने जेपीसी जांच का समर्थन किया। मनोज झा ने कहा कि यह भ्रष्टाचार के स्तर को दर्शाता है। इससे आप समझ सकते हैं कि भारतीय राजनीति अब किधर जा रही है और नरेंद्र मोदी का ग्राफ कितना नीचे जा रहा है। तो आप समझ गए होंगे कि अब हिंडनबर्ग में क्या किया है और आगे राजनीति किधर जा रही है। लेकिन एक बात तो तय है कि राहुल गांधी ने हिंडनबर्ग पर मोदी को बैकफुट पर ला दिया है और नरेंद्र मोदी निरंतर नीचे जा रहे हैं।